رسول بس یہ ناٹی کھوٹی جو ہے 1.5 بالشت کی نا، قد ان کا کیا تھا تھوڑا سا پستہ قد تھی. حضرت عائشہ مکمل کہتی کیا ہے عائشہ اللہ رسول بس جب دیکھے آپ اس ناٹی کھوٹی کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے ہیں. اللہ اکبر. صرف اس صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناٹی کھوٹی ٹھیکنی کہہ دیا. آج فرمایا یا عائشہ تو سنن نبی داؤد کی عائشہ تم نے اس کی شکل صورت قد قامت پر تانا دے کر کے تنقید کر کے تم نے اتنی بری بات کہہ دی. اللہ کی قسم لو مزج فی البحر لمزجت ہو، اگر تمہارے اس بات کو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شکل و صورت پر تو نے تنقید کر دیا ہے، اگر اس بات کو سمندر کی پانی میں ملا دیا جائے تو اللہ کی قسم سمندر کا پانی بھی بدبودار ہو جائے. اور پھر تنقید شوہر اپنی بیوی کی شکل و صورت پر کرے جس کے ساتھ زندگی گزارنا. آپ نے فرمایا خبردار عورت کا حق تمہارے اوپر ایک بھی ہے ولا تقبح، کبھی اس کی شکل و صورت اس کی عادات و اطوار پر گھناؤنے الفاظ سے تبصرہ نہ کرنا. آخری حکم ولا تہجرها الا فی البیت، اگر کبھی تنبیہ اصلاح نصیحت کے غرض سے اس کو الگ کرنا تو گھر سے باہر نہ بھگا دینا، میکے نہ بھگا دینا، اپنے کمرے سے نہ نکال دینا. زیادہ سے زیادہ تم کو اجازت ہے تو صرف اس کا بستر آپ الگ کر سکتے ہیں. آپ کمرے سے باہر بھی آپ نے کر دیا عورت کو غصے میں آ کر کے تو گویا کہ آپ نے عورت اپنی بیوی کا حق سلب کر لیا، چھین لیا. یہاں تک اللہ کے رسول نے حق کی پابندی کی ہے. اگر کبھی اس کو الگ بھی کرنا ہے تو لا تہجرها الا فی البیت، اپنے ہی کمرے میں اس کو الگ کرنا، بستر الگ کرنا، بس بستر الگ کرنے سے زیادہ کوئی اختیار تم کو نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی طرح سے اور بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع بیان فرمایا تمہاری عورتوں کے تمہارے اوپر حق ہیں اور تمہارے حقوق عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، تمہارے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں. عورتوں کے حقوق جو تمہارے اوپر یہ ہیں کہ خبردار ان کے ساتھ بھلائی کرنا. اوان عندکم، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قید میں ان کو دے رکھا ہے. اللہ کے نے کون سا الفاظ استعمال کیسے اوان، کیا اوان، اوان کہتے ہیں اسیر اور قیدی کو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحتی میں ان کو دے رکھا ہے، وہ تمہاری قید میں آ چکی ہیں نکاح پڑھ لینے کے بعد. اس لیے اب تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ان کو تنگ کرنے کا، تکلیف دینے کا، سختی کرنے کا، الا کہ کوئی بہت بڑی بے حیائی کا کام کر ڈالیں. اگر وہ غلطی کر ڈالے تو ان کو نصیحت کرنا، ان کا بستر الگ کر دینا. اور اگر کبھی غصے میں ہاتھ اٹھ جائے تو اتنے زور سے نہ مارنا کہ ان کے بدن پر نشان پڑ جائے. یہ اللہ نے حقوق مقرر کیا. اور یہ بھی بیان فرمایا کہ تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے اوپر کیا ہے، مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر کیا ہے. فحقکم علیہن، تمہارا سب سے بڑا حق ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اجنبی انسان کو بیٹھنے. اللہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ اور کسی ایسے انسان کو گھر میں آنے نہ دینا جن کا گھر میں آنا اور داخلہ ہونا تمہارے شوہر کو ناگوار اور ناپسند. یہاں تک اسی طرح سے تمہارے حقوق ان کے وہ ہیں، تمہارے حقوق ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں کہ ہمیشہ ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھے سے اچھے کھلانا، اچھے سے اچھے پہنانا اور ان کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آنا. بہت سارے حقوق تھے، ہم نے چند باتیں رکھی ہیں. اللہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بہت بڑی چیز کیا ہے کہ بھئی ایک حدیث سننے دے اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ مردوں کے حقوق کتنے بڑے ہیں. کیا آپ نے ساتھ فرمایا کہ مرد کا حق عورت کے اوپر یہ کہ نفلی روزہ بھی اگر شوہر گھر میں موجود ہے تو عورت کے لیے جائز نہیں کہ نفلی روزہ رکھے مگر اس وقت جبکہ شوہر سے اجازت ہے. یعنی نفلی عبادات کرنے میں بھی
शौहर की इजाजत जब लेना जरूरी है तो मेरे भाई यहाँ आना वहाँ जाना, यहाँ घूमना, और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना। जब घर में रह करके नफली रोजा रखने की इजाजत नहीं है बगैर शौहर की इजाजत के, तो मैं नहीं समझता कि हाँ आज बहुत सारी माएँ और बहनें और जो रास्ता इख्तियार कर ली हैं वो कहाँ तक जायज़ हो सकता है। इसीलिए बड़ी मशहूर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, एक मौके पर आपने इरशाद फरमाया कि इन्नल मरअत इज़ा खरजत मिन बैतिहा, औरत अपने घर से अगर निकल जाए, वज़ौजुहा कारिहुन, और शौहर पसंद नहीं करता। जहाँ औरत जा रही है शौहर पसंद नहीं करता कि हमारी बीवी वहां जाए, तो आप इरशाद फरमाते हैं जब औरत कहीं ऐसी जगह अपने घर से बाहर जाए जहां शौहर पसंद नहीं करता और शौहर राजी नहीं कि वहां जाए, तो आप फरमाते हैं लाअनता कुल्लु मलकिन फिस समा, उस औरत पर आसमान में जितने फरिश्ते हैं सब अल्लाह की लानत भेजते हैं कि शौहर नहीं इजाजत दे रहा तो फिर क्यों ये घर से बाहर। शौहर नापसंद कर रहा था, नहीं जाना चाहिए था उसको, अब वहां चले जाने पर मजीद इस दुबारी जिंदगी में बिगाड़ पैदा होता है। ये कोई आजादी नहीं छीनी जा रही है, मामला क्या है, एक छोटी से आजादी हासिल करने के लिए अपने घर की बर्बादी और तबाही कर डाले, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आप फरमाते हैं लानतहा कुल्लु मलकिन फिस समा, सातों आसमान में बसने वाले जितने फरिश्ते हैं सब उस औरत पर लानत भेजते हैं। और इससे भी ज्यादा और क्या है, कुल्लु शैइन मर्रत अलैहि गैरुल इंस वल जिन्न, इंसानों और जिन्नों के अलावा जिस मखलूक के करीब से गुजरती है, शजर हजर दरख्त जिस मखलूक के करीब से गुजरती है, सारी मखलूकात भेजती हैं कि कैसी मलऊन औरत है कि शौहर मना कर रहा है और शौहर रोक रहा है, शौहर नापसंद करता है, इसके बावजूद भी ये बगैर इजाजत के चली जाती है। इतनी बड़ी अजाब, इतना बड़ा अजाब और लानत लेने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह ताला सब अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, और एक बहुत बड़ा हक है जिसमें आज बड़ी कोताही हो रही है, क्योंकि निकाह और तलाक के मसाइल में अक्सर बेशतर यही कमी देखी गई है। ये आखिरी हदीस सुने और इस पर अमल करने की आप भी कोशिश करें माएँ और बहनें, और अगर इस हदीस पर अमल होने लगे तो मैं समझता हूँ 9% तलाक और झगड़े आज भी खत्म है। वो क्या है मेरे भाई, अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ मर्दो अला उखबिरुकुम बिरिजालिकुम, क्या मैं जन्नती मर्द बताऊं कि जन्नत में कौन कौन मर्द जाएंगे। साहबे कराम ने कहा बला या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया अन्नबी फिल जन्नह, जन्नत में कौन जाएंगे सबसे पहले, नबी, वस्सिद्दीक फिल जन्नह, सिद्दीक जन्नत में जाएंगे, और कौन जन्नत में जाएगा। आपने इरशाद वररजुलु यज़ूरु अखाहु फी नाहियतिल मिस्र वला यज़ूरु इल्ला लिल्लाह, वो मोमिन दूसरे शहर में या शहर के आखिरी किनारे में कोई मुसलमान भाई उसका बसता है, अपने घर से उससे मिलने के लिए जाता है, ज़ियारत करने के लिए, और मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रिज़ा है और कोई दुनियावी मकसद नहीं है, ऐसे खुशनसीब मर्द को भी अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। ये जन्नती इंसान है जो अपने घर से दूर दराज तक जाता है और सिर्फ अपने मुसलमान भाई से मिलने, सलाम करने और खैरियत मालूम करने के लिए। फिर आपने फरमाया अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम, क्या मैं बताऊं कि तुम्हारी कौन सी औरतें जन्नत में जाएगी। साहब इकराम ने कहा बला या रसूलल्लाह, हम भी चाहते हैं और औरतें भी चाहती है कि हमारे साथ जन्नत में जाए। और मैं सुन लो, वदूदुन, कौन, वदूदुन वलूदुन, वो औरत जन्नत में जाएगी जो अपने शौहर से मोहब्बत रखने वाली होगी। अगर दिल में नफरत है, नहीं पहले तो बड़ी मोहब्बत थी, इतना एहसान किया कि मैंने सारी मोहब्बत निकाल करके, इतनी बड़ी बड़ी तावीज़ें बाबा की बात ही होगी, पता नहीं कैसे मोहब्बत निकाल दिया। थोड़े अफसोस की बात है। सोचो आप क्या फरमाते हैं, वो औरत अला उखबिरुकुम, मैं तुम लोगों को बताऊं कि वो औरतें जो जन्नत में जाएगी। बला या रसूलल्लाह, कौन जाएगी।
पहली खूबी क्या? वधूदुन, अपने शौहर से मोहब्बत रखने वाली, अमानतदार, शौहर से मोहब्बत रखने वाली। वलूदुन, और बच्चे हैं तो बच्चों की सही तरबियत करने वाली। वलूद, बच्चों से मोहब्बत, बच्चे वाली। नंबर 3, शौहर से मोहब्बत का आलम क्या है? शौहर से क्या मोहब्बत करती है जन्नत में जाने वाली औरत? इदा गज़बत, जब शौहर के किसी बात पर गुस्सा आई और अकड़ गई। गुस्सा आया, इंसान है, गुस्सा, शौहर ने कुछ कह दिया और उसी अलैहा, या शौहर ने कोई ज्यादती कर दी, बड़ा गुस्सा उसको आया, वो अपनी जगह पर गुस्सा और शौहर अपनी जगह पर गुस्सा हो गया। अब दोनों गुस्से से, और आगे क्या इरशाद फरमाते हैं? या उसका शौहर उससे किसी और वजह से नाराज हो गया है। ये किस औरत का बयान हो रहा है जो कहां जाएगी? कि जन्नत, जन्नत में। वदूदुन, मोहब्बत करने, वदूदुन, और क्या हो? शौहर अगर नाराज है, मोहब्बत करने वाली शौहर से, बच्चों का ख्याल रखने वाली। बच्चे हैं, जब बच्चे घर में रहते हैं तो बच्चों की वजह से औरत और ज्यादा परेशान होती है, मिजाज में चिड़चिड़ापन, कभी बच्चे तंग कर रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, उसी मौके पर शौहर ने कोई बात कह दिया तो कहा जाता है जख्म पर और मुश्किलात आ जाती है। इसलिए आपने यहां वलूद, बच्चे वाली, शौहर से मोहब्बत करने वाली, वलूद। और अगर शौहर से खुद नाराज हो गई, वो शौहर उससे नाराज, या शौहर उसकी किसी आदत की बिना पर गुस्सा हो गया, तो शौहर के पास आती है और कहती अल्लाह की कसम, मैं अपनी आंख में सुरमा तक नहीं लगा सकती, एक लुकमा हम अपने हलक के नीचे नहीं उतार सकती जब तक कि आप राजी ना हो जाए। आप फरमाते हैं शौहर के गुस्सा हो जाने के बाद ये औरत के ऊपर हक है कि अगर अपने शौहर को राजी कर ले, ये वो औरत है जिसके लिए आपने फरमाया जन्नत में जाने वाली है। अल्लाह ताला सबको उम्र की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह अगले दर्सों में अल्लाह ताला याद रखने, गैरों तक पहुंचाने की, ये हुकूक एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा मैंने कोशिश की कि एक दीनदार औरत की मुस्लिम मुआशरे में अहमियत और उसकी क्या कदर कीमत है। एक दीनदार औरत की अगर कदर कीमत हमें मालूम हो जाए तो भाई उसकी हजार गलतियों से भी नजरअंदाजी हो सकती है। अल्लाह ताला की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कि बगैर इजाज़त बीवी अपने मैके वालों को पैसा देती है, क्या ये शरीयत में जायज़ है? नहीं। अभी आपने सुना कि अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया कि ना शौहर की खियानत करती है, ना अपने नफ्स के पर, यानी नफ्स की खियानत क्या है? शौहर ने मना किया है कि किसी मर्द का टेलीफोन आए उठाना नहीं। अब किसी मर्द से क्या किया? टेलीफोन पर बात किया। ये किसकी खियानत है? अपने साथ में शौहर की खियानत की। और एक दीनदार औरत की निशानी क्या बयान की गई? शौहर के माल में भी खियानत नहीं करती। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक बयान फरमा दिया कोई औरत ऐसे शख्स को भी घर में ना आने दे, शौहर का हक है कि औरत ऐसे मर्द को घर में ना आने दे, ऐसे लोगों को जिसकी आमद शौहर को पसंद नहीं है, तो माल का देना भी करना चाहिए। शौहर के वालिदैन की खिदमत करना औरत के ऊपर फर्ज है? ये सवाल यहाँ आया लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने